ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں کے کم عمل سے راضی ہوا اور ان کی کوتاہیوں لغزش سے اس نے درگزر کیا، انہیں نعمتوں سے نوازا اور اپنے اوپر اس نے رحمت کو واجب کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی ثنا بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جس نے اس کے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے قدوہ، سالکین کے لیے جادہ حق اور تمام مخلوقات پر حجت بنا کر مبعوث کیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو اور جان لو کہ دنیا ایک سامان ہے اور آخرت ہی دار قرار ہے، اور نیکیوں کے چھوٹنے سے قبل ان کی طرف تیز بڑھو، لغزشوں پر اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا، اور جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو درست کر لیا اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے مابین کے معاملہ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ امت مسلمہ شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز کی طرف بلایا ہے جو اخوت کے مفہوم کو پورا کرے اور الفت و مودت کو بڑھائے اور اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو اختلاف و فتنہ کا باعث ہو اور اس کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا ہے۔ من جملہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بدگمانی بھی ہے، اور بدگمانی کہتے ہیں بغیر کسی دلیل اور حجت کے تہمت لگانا، اور برا گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بدگمانیوں سے منع فرمایا ہے کہ مبادا آدمی گناہ میں پڑے، بدگمانی سے محبت کرنے والوں کے بیچ کتنی جدائی ہوئی، باہم شریک لوگوں میں کتنا اختلاف ہوا، کتنی معاشرت خراب ہوئی اور کتنی صحبت ختم ہوئی۔ مومنوں، مسلمان کا اس کے بھائیوں پر یہ حق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے معتمد سمجھا جائے، اس سے بدگمانی نہ رکھی جائے اور اسے خائن نہ سمجھا جائے، جب تک کہ بھلائی اس کے اخلاق پر ظاہر ہو اور اس کی خصلت پر بھروسہ کی نشانیاں روشن ہوں۔ جس کا معاملہ چھپا ہوا ہو اور نیکی ظاہر ہو اور امانت و کامرانی دیکھی جاتی ہو، اس کے سلسلے میں بدعنوانی اور خیانت کا گمان کرنا حرام ہے، اور جو ایسے آدمی کے ساتھ بدگمانی کرے وہ گناہگار ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے گمان کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس سے دل کی راحت، نفس کا سکون، دل کی سعادت، سینے کی سلامتی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پیروی حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، مسلمان کی اصل بے عیبی و برات ہے اور بغیر یقین کے اس اصول سے پھرا نہیں جا سکتا۔ عیبوں کے پیچھے پڑنا، خطاؤں اور غلطیوں کو ڈھونڈنا، لغزشوں پر خوش ہونا، الفاظ کی غلط تعبیر کرنا اور مسلمانوں سے بغضن ہونا نیک لوگوں کا شیوا نہیں۔ جس کی یہ خصلت ہو اس نے اللہ کے غضب و غصہ اور رسوائی و فضیحت کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان جن کے دل میں نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ جو لوگ لوگوں سے جھوٹے گمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ان کے اندر کینے اور عداوتیں پائی جاتی ہیں جن سے ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، زندگی اجیرن اور بے کیف ہو جاتی ہے، یوں اس کی
गुजर बसर तंग हो जाती है और बसीरत अंधी हो जाती है। वो तावीलों, तखमीनों, तजजियों और तफसीरों की पनाह लेता है और ये दावा करता है कि ये दानिशमंदी और ज़हानत है, जबकि हकीकत में ये नियतों से खेलने की किस्मों में से एक किस्म है। और आदमी अपनी बदजन्नी के आगे सिपर डालता रहता है। वो लोगों की बुराइयों और लफ्जिशों का जिक्र करके उनकी ऐबजोई करता रहता है, उनकी हालतों को बिगाड़ कर पेश करता रहता है, यहाँ तक कि वो ख्याल करता है कि लोग बिगड़ गए और हलाक हो गए, जबकि वो उनमें सबसे बुरे हाल में होता है, क्योंकि उसने जो उनकी ऐबजोई की और गीबत की और उन्हें कमतर और हकीर जाना और खुद को उन पर फौकियत दी, उस सब का उसे गुनाह मिला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी कहे कि लोग हलाक हो गए तो वो सबसे ज्यादा हलाक होने वाला है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब आदमी के लिए सख्त मुश्किल होता है कि वो अपने काम में अपनी नीयत को ठीक से जान सके, तो वो मखलूक की नियतों से कैसे वाकिफ हो सकता है। इसलिए जिसे नजात चाहिए उसे अपने बारे में बदगुमानी रखनी चाहिए, अपने दिल की इस्लाह, नफ्स के तज़किया और सीने की पाकी की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के ऐबों से अलग अपने ऐबों की इस्लाह में मशगूल रहना चाहिए। एक आदमी अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और जब आप मरजुल मौत में थे और आपका चेहरा खिल रहा था और आप कह रहे थे, मेरे नजदीक दो चीजों से बढ़कर मजबूत कोई अमल नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं करता जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं और मेरा दिल पाक रहा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो ये चाहता हो कि उसका खात्मा बिल खैर हो, उसे लोगों से हुस्न ज़न रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुस्न ज़न और हुर्मत मोमिन की अजमत की तलकीन किया करते थे। सुनन इब्ने माजा में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा का तवाफ करते हुए देखा और आप कह रहे थे, तू कितना अच्छा है और तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तू कितना अजीम है और तेरी हुर्मत कितनी अजीम है। कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अल्लाह के नजदीक मोमिन की हुर्मत यानी उसके मालो जान की हुर्मत उससे भी अजीम है, और ये कि हम उसके साथ हुस्न ज़न ही रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शैतान के रास्तों को बंद करने और सूए ज़न की बत्ती को खींच फेंकने की राह दिखाते थे। सहीहैन में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी रात को अचानक अपने घर वालों के पास पहुँचे और ये चाहे कि उन्हें खयानत का इर्तिकाब करते हुए देखे और उनकी लफ्जिशें तलाश करे। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो शक का शिकार हो गया था और बीवी के सिलसिले में बुरे गुमानों में घिरा हुआ था, इसलिए कि उसकी बीवी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो न उसके रंग पर था और न इसके रंग पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ऊँटनी के रंग के बारे में पूछकर उसके दिल के शक को खत्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके रंग हैं? उनके क्या रंग हैं? उसने कहा, सुर्ख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उनमें कोई स्याही माइल भी है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो स्याही माइल ऊँट कैसे आ गया? उसने कहा, हो सकता है किसी रग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे उस बेटे को किसी रग ने खींच लिया होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन जैद पर गुस्सा हुए जब उन्होंने उस शख्स को नियत की ताबील करते हुए कत्ल कर दिया था जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और तुमने उसे कत्ल कर दिया? उसामा कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने हथियार के डर से कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसका दिल फाड़ कर क्यों न देख लिया कि उसने कहा या नहीं? और इसका मफहूम यह है कि तुम जुबान जो बोलती है उसके मुकल्लफ हो, जहाँ तक दिलों का ताल्लुक है तो उनके अंदर क्या है, उनकी मार्फत का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। अहकाम के अंदर जाहिर पर अमल होगा और अल्लाह तबारक व तआला बातिन का मालिक है। और दूसरी रिवायत में है, उसामा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, तुमने उसे क्यों कत्ल कर दिया? उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई, फला फला को कत्ल किया। हजरत उसामा ने चंद मुसलमानों के नाम लिए, फिर मैं उस पर जा चढ़ा। जब उसने तलवार देखी तो कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? हजरत उसामा ने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत के दिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तो तुम उसका क्या करोगे? उसामा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या करोगे जब वो कयामत के दिन तुम्हारे सामने आएगा? उसामा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही कहते रहे, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या करोगे जब वो कयामत के दिन तुम्हारे सामने आएगा? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो के बाद बदगुमानियां गुनाह है। और भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह मुझे
मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकत से नवाजे, मुझे और आपको उनमें मौजूद निशानियों और हिकमत से फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और खता से अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, वो राजों और पोशीदा चीजों को जानने वाला है। उससे जमीन और आसमानों में कोई चीज जर्रा बराबर भी छुप नहीं सकती। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आलो असहाब पर, और ता क़यामत बहुत ज्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, मुसलमानों, दूसरों के साथ हुस्ने ज़न रखने पर जो असबाब मददगार हैं, उनमें यह है कि उनकी बातों और कामों का सबसे अच्छा मफहूम लिया जाए और उनके लिए उज़्र तलाश किए जाएं। हुस्ने ज़न और उस पर उभारने के सिलसिले में सलफ के अक़वाल बहुत हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, किसी मुसलमान आदमी के लिए जायज नहीं जो अपने किसी भाई से कोई बात सुनता है कि वो उस बात के सिलसिले में बदगुमान हो, जबकि वो भलाई की किसी चीज में उसका रास्ता पाता है। और सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से मेरे बाज भाइयों ने मुझे लिखा, अपने भाई के मामले को सबसे अच्छे महमल पर रख, यहाँ तक कि तेरे पास वो बात आ जाए जो उसके खिलाफ हो। मुसलमान आदमी की जुबान से निकले हुए किसी कलमा की वजह से उससे हरगिज बदजन न हो, जबकि तू भलाई में उसका कोई मफहूम ले सकते हो। मुसलमान अपने भाई से सादिर होने वाले कौल फेल को अच्छे मफहूम पर महमूल करता है, जब तक कि जन यकीन जाजिम में न बदल जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल ने तुम्हें हमें तहकीक का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। असल ये है कि हम लोगों के साथ हुस्ने ज़न रखें जब तक कराइन से उसके खिलाफ बातें वाज़ेह न हो जाए, और ये भी कि उनके बारे में जो बुराई और शर से पहचाने जाते हों। मुस्नद अहमद में है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिसने तुम में से हमारे लिए खैर को जाहिर किया, हम उसके बारे में खैर का ही गुमान रखेंगे और उस पर उससे मोहब्बत करेंगे, और जिसने तुम में से हमारे लिए शर को जाहिर किया, उसके बारे में शर का गुमान रखेंगे और उससे नफरत करेंगे। ईमानी भाइयों, तो जिस तरह मुसलमान को रोका गया है कि वो अपने भाइयों के बारे में बुरा गुमान रखे, उसी तरह उसे ये हुक्म दिया गया है कि तुहमतों की जगह से बचे, ताकि लोगों के दिलों को उसके तई बदगुमानी रखने और उनकी जुबानों को उसकी ग़ीबत करने से बचाए। सहीहैन में सफिया बिन्त हुयई रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में थे, मैं एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, मैंने आपसे बातें की और फिर मैं लौटने के लिए खड़ी हुई, आप मुझे छोड़ने के लिए खड़े हुए। इसी दरमियान अंसार के दो आदमी गुजरे, उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, ये सफिया बिन्त हुयई हैं। उन दोनों ने कहा, सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर उसके खून की मानिंद दौड़ता है और मुझे ये खदशा लगा कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कोई बुराई न डाल दे। इसीलिए मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि जब वो रमजान में सफर करे तो वो लोगों के सामने अपने इफ्तार का मुजाहिरा न करे, और जब वो अपनी फर्ज नमाज अदा कर ले और एक ऐसी जमात के पास आए जो नमाज अदा कर रही हो तो उनके साथ दूसरी मर्तबा नमाज अदा करे, और ये उसके लिए नफल होगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में जाबिर बिन यजीद बिन असवद आमरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके हज में था, फरमाया, मैंने मस्जिद खैफ में आपके साथ फजर की नमाज अदा की। जब आपने नमाज पढ़ ली तो देखा मस्जिद के आखिर में दो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लाओ। वो दोनों लाए गए और वो कांप रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने डेरे में नमाज पढ़ ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करना, जब अपने डेरे में नमाज पढ़ लो और फिर जमात वाली मस्जिद में आओ तो उनके साथ भी नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल होगी। ऐ अल्लाह, हमें सबसे अच्छे अखलाक पर चला, सबसे अच्छे अखलाक पर तू ही चला सकता है, और हमसे बुरे अखलाक को फेर दे, बुरे अखलाक को हमसे तू ही फेर सकता है। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद आपकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर दुरूद भेजा, और बरकतें नाजिल फरमा मोहम्मद और आपकी बीवियों और ज़ुर्रियत पर, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर बरकतें नाजिल फरमाई। बिलाशुबा तू काबिल हम्द और साहिब शौकत है। और अल्लाह तू राजी हो जा हिदायत याफ्ता अइम्मा और खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बकिया सारे सहाबा से और ता क़यामत उनसे जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें, और अपने अफ़ो करम और जूदो सखा से राजी हो जा। ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को और
اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا دے اے اللہ، فارغ بنا دے اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ۔ ہم تیرے فضل و کرم اور تیرے جود و سخا کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے بچا اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ۔ جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو اپنی ذات میں الجھا دے اے حی و قیوم اے اللہ۔ ہمارے خادم حرمین شریفین کو تو اپنی مرضی اور اپنے منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے اے اللہ، انہیں اور ولی عہد کو اور ان کے عوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ۔ تم اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ دے اے اللہ۔ تو تمام تر مسلم سربراہوں کو اس کی توفیق دو جو تو چاہتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ۔ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ، ہمارے اوپر پردہ فرما اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہماری ذریت کی مغفرت فرما اے اللہ۔ تو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ، تو ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔